की शुरुआत करते हैं। ओडिशा में एक और ट्रेन हादसा हुआ है। ओडिशा के बरगढ़ में मालगाड़ी हादसे का शिकार हो गई। मालगाड़ी की 5 बोगियां पटरी से उतर गईं और मालगाड़ी में चूना पत्थर लदा हुआ था। इसके 5 डिब्बे बरगढ़ में पटरी से उतर गए। हालांकि हादसे में किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। ईस्ट कोस्ट रेलवे का भी हादसे पर बयान सामने आया है। रेलवे ने बताया कि निजी सीमेंट कंपनी द्वारा इस मालगाड़ी को चलाया जा रहा था। ये नैरो गेज साइडिंग पर चल रही थी। कंपनी द्वारा ही रोलिंग स्टॉक इंजन, वैगन, ट्रेन ट्रैक समेत सभी बुनियादी ढांचे का रखरखाव किया जा रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बालासोर दुर्घटना पर दुख जाहिर किया और हादसे से प्रभावित लोगों के लिए घोषणाएं की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जिस दिन ये घटना हुई उसी दिन हमने 150 एम्बुलेंस, 50 डॉक्टर्स, नर्स, बस और आपदा प्रबंधन की टीम दुर्घटना स्थल भेजी थी। हम ओडिशा सरकार का पूरा सहयोग कर रहे हैं। কেউ একটা রটিয়েছে, আমার মনে হয় এটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াও করতে পারে, কারোর থ্রুতে রেল মিনিস্ট্রিও করতে পারে, ভাজপাও করতে পারে। তাতে তারা একটা বিরাট লিস্ট দিয়েছে। আমার সময় নাকি 3300 কত মারা গেছে, নীতিশের সময় কত 2000 কত মারা গেছে, লালুর সময় মারা গেছে, এইসব নিয়ে। তারা কি একবারও ভেবেছেন যে আমার সময় যে রেলটাকে আমি মডার্নাইজ করে দিয়ে এসেছিলাম, আজকে সেটার জন্যই কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট অনেকটা মানে কমেছে। ম্যানড লেভেল ক্রসিং, নিউ সিগন্যাল সিস্টেম, অ্যান্টি কলিউশন ডিভাইস, এগুলো আগে ছিল না। তা সত্ত্বেও যে ইনফরমেশন তারা দিয়েছে, দিস ইজ এ রং ইনফরমেশন। আমি তো এখন রেল মিনিস্ট্রিতে নেই, ন্যাচারালি আমার কাছে তো সব ডকুমেন্টও নেই। আমি যেটুকু পেয়েছি আমি রেফারেন্স উইকিপিডিয়া থেকে আমি জোগাড় করেছি। তাতে 2/12/2000 একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল হাওড়া অমৃতসর মেল। তখন অ্যান্টি কলিউশন ডিভাইস ছিল না, তখন ম্যান লেভেল ক্রসিং ছিল না। 22/6/2001 ম্যাঙ্গালোর একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল, 52 জন মারা গিয়েছিল। পুরী 10-21 জন মারা গিয়েছিল মথুরা এক্সপ্রেস গোয়া। 2 তারিখে আপনারা জানেন যে গোরখধাম এক্সপ্রেসে 10 জন মারা গিয়েছিল। এই সময় আমাদের সাহায্য করা উচিত না আমাদের ঝগড়া করা উচিত? আমি কালকে নিজে গেছি, আপনারা প্রেস শুনেছেন, আমি একটি বাজে কথাও বলিনি এবং আমি কাউকে কোনো অ্যাটাকও করিনি। আমার পাশে রেল মিনিস্টার দাঁড়িয়েছিল, ধর্মেন্দ্র দাঁড়িয়েছিল, ঠিক যতটুকু বলার আমি ততটুকু বলেছি। বলতে আমি অনেক পারতাম, কারণ আমি রেল ডিপার্টমেন্ট 3 বছর চালিয়ে এসেছি। শুধু নয়, আমি সাপ্লিমেন্টারি ডিমান্ডস নিয়ে প্রায় 7-8টা বাজেটও আমি প্লেস করেছি এবং রেলটা আমার হাতের তালুতে ছিল। আমি সার্ভে করতাম মাঝে একবার আমরা মালদায় গেলাম কদিন আগে। জিজ্ঞেস করুন, আমার চিফ সেক্রেটারি আছে আমার সাথে নবান্ন মিটিংয়ে। আমি এদের বলতে গেলাম আমাদের অফিসারদের যে দেখো, ধাক্কা খেতে খেতে যাচ্ছি, তার মানে হচ্ছে মেনটেনেন্স নেই। নিচে যে পাথরগুলো থাকে, ব্যালাস্ট গুলো দেয়, মাঝে চেঞ্জ করে, সেগুলো নেই। সিগন্যালিং সিস্টেম কেউ দেখেই না আছে কিনা, আদৌ খারাপ হয়ে গেছে, চলছে ভগবানের দয়ায়। অ্যান্টি কলিউশন ডিভাইস ছিল না কেন? করমন্ডলের মতো একটা নামকরা ট্রেন, ইভেন যশবন্তপুর, ব্যাঙ্গালোর, এগুলো সব নামকরা ট্রেন। অ্যান্টি কলিউশন ডিভাইস কেন করেছিলাম? 2টো ট্রেন মুখোমুখি যাতে আসতে না পারে। একটা ট্রেন আসছে দেখলেই ওই কলিউশনটা অটোমেটিক্যালি ট্রেনটা থেমে যাবে। বেঙ্গলেরই মারা গেছে 162 জন এখনো পর্যন্ত, যে আইডেন্টিফাই করতে পেরেছি আমরা। আরো অনেক আছে। আমাদের বিভিন্ন হসপিটালে 206 জনকে আমরা অ্যাডমিট করেছি ওখান থেকে নিয়ে এসে। এবং উড়িষ্যাতেও আমাদের 73 জন ভর্তি আছে এবং মেডিকেল ট্রিটমেন্টের পরে ছাড়া হয়েছে 56 জনকে ওখানে। এবং নম্বর অফ আনআইডেন্টিফাইড ডিজিজ 182। এখনো পর্যন্ত তাদের ফটো, কোড সবই আমরা শেয়ার করেছি অল ডিস্ট্রিক্টে। তাদের কেউ আইডেন্টিফাই করতে পারছে না, প্রায় 182 জনকে।
एवं जितना स्टेशन आप देखते हैं आज नया नया बन रहा है, जैसे दक्षिणेश्वर आदल में, अजमेर का आदल में, सब मैंने करके आया। कामाख्या का आदल में जितना भी मेट्रो ट्रेन, अगर आप पूछे मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन कौन बनाया था, हमारा टाइम में हम बने था। दिल्ली मेट्रो हम नहीं रहने से होता ही नहीं, इतना झगड़ा अंदर में था। मैंने 2 दल के बैठ के मिटा के, शिलाजी तब चीफ मिनिस्टर था दिल्ली का और हम थे, हम लोग दोनों मिलके उसको उद्घाटन किया था। उसी के लिए आज दिल्ली ट्रेन है। जब कोई देश में कोई डिजास्टर होता है तो वहीं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बालासोर में ट्रेन दुर्घटना के बाद से मौके पर मौजूद हैं और हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। हालात के बारे में बात करते हुए इस दौरान अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अब तक 3 गाड़ियां जा चुकी है और रात से करीब 7 गाड़ियों के जाने की योजना बनाई है। जिन परिवारों के लोग खो गए हैं उनको जल्द से जल्द उनके परिजनों तक पहुंचाना है, ये हमारा दायित्व है जो अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी आपने देखा अब तक 3 गाड़ियां जा चुकी है। टोटल रात में करीब 7 गाड़ियां प्लान्ड है और एकदम नॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जाना है। और बहुत ही संवेदना के साथ जिन परिवारों के मेंबर्स खो गए उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे, ये हमारा दायित्व अभी खत्म नहीं हुआ है। बिहार के भागलपुर में रविवार को निर्माणाधीन पुल भरभरा कर गिर गया। इस हादसे का खौफनाक वीडियो सामने आया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हादसे में किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन पुल गिरने से मौके पर अफरा तफरी मच गई है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं और जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिए कहा है। खगड़िया अगवानी सुल्तानपुरगंज के बीच बन रहे पुल के टूटने का वीडियो सामने आया है। देखते ही देखते पूरा पुल गंगा नदी में समा गया। हैरानी की बात यह है कि 2 साल पहले भी इस पुल का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया था। 4 साल पहले सीएम नीतीश कुमार ने इस पुल का शिलान्यास किया था। वहीं बिहार के भागलपुर में रविवार को निर्माणाधीन पुल भरभराकर गंगा नदी में गिर गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हादसे में किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि 4 साल पहले नीतीश कुमार ने इस पुल का शिलान्यास किया था। इस पुल की लागत 1700 करोड़ से थी, जो बता दें कि इस पर सीएम नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। भागलपुर में जो हुआ है, अभी कुछ समय पहले एक बार और हुआ था, तो उसी समय हमने कहा ऐसा क्यों हुआ है, और जबकि हम इसको बनाने के लिए हमने बहुत पहले तय किया था। हमने 12 में ही देखा और 14 से काम शुरू हुआ। अब जिसको भी दिया गया है एजेंसी, अब इतना देर क्यों हो रहा है? और एक गिर गया था तो उस समय भी हमने कहा था, 1 साल पहले की बात है। अब फिर जब 2 हो ये फिर गिरा है, कल ही हमको पता चला है, तो तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जाकर के देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए। ये कोई तरीका नहीं, अब तक तो हो जाना चाहिए था जी। बहुत हो गया है, देर हुआ है, तो काहे के लिए ऐसा कोई होता है, एजेंट कोई बना रहा है, इतना देर क्यों कर रहा है? उसको बड़ा तकलीफ हुआ, इसलिए हमने कह दिया कि उसको तत्काल देखिए। और ठीक नहीं बना रहा है तभी गिर जा रहा है भाई। इसका मतलब उसको तो और मजबूती से बनना चाहिए था, बन करके और तैयार हो जाता, लोगों को कितनी खुशी थी। हम कितना पहले जा करके एक चीज को देख करके कराए हुए, लेकिन जो नहीं हुआ हमको बड़ी तकलीफ है। और अब डिपार्टमेंट अब इस बात को देख लेगा। हमारे उप मुख्यमंत्री को भी ये चीज की मालूम जानकारी है कि सब लोग उसको जल्दी से जल्दी, जो नहीं करेगा वो अपनी तरफ से जितना भी जल्दी हो सकता है उस काम को कराने का हम लोग की इच्छा है। बिल्कुल कह तो रहे, कल ही तो बोल दिए हैं। जैसे ही हमको खबर जैसे ही मिला वैसे ही तुरंत हमने सबसे बात किया। इसलिए नहीं, वो एक्चुअली 12 को जो करने वाले थे तो उसमें मैक्सिमम लोगों का समर्थन आ गया था, लेकिन एक का, और हम इनको तो कर दिए थे कांग्रेस वाले को, तो वो अभी देख रहे थे तो उनका रिपोर्ट नहीं आ रहा था। एक का और आ गया था कि सर 12 को तो हम नहीं रहेंगे। फिर कल भी हमारी बातचीत हुई है, तो युवा का भी अब 12 छोड़ दिया जाए। फिर हमने कांग्रेस पार्टी को कहा है कि आप लोग भी बात कर लीजिए और देख लीजिए, उसके बाद का जो डेट तय होगा तब तो 12 वाला नहीं होगा। 12 वाला नहीं, उसके
इसके लिए कि बात पटना में समझिए, देखिए बात ये है कि सबको हेड को आना है। अब कोई दूसरा रिप्रेजेंटेटिव आएगा ये ठीक नहीं, तभी ना, इसलिए नहीं, बाकी सब लोग दूसरे सब पार्टी के लोग भी कहने लगे कि मान लीजिए कि उसके तरफ से कोई दूसरा आवेगा, ये अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बारे में चर्चा होने लगी कि उनके हेड नहीं आएंगे, उन लोगों का क्या दूसरे आ जाएंगे, तो सब लोग कहने लगे कि नहीं साहब ये ठीक नहीं होगा, तो आना चाहिए। तो कल हम कह दिए उनको कि ऐसा नहीं, कोई दूसरा दिन होगा, तो जो कोई डेट तय होगा तब फिर बताएंगे। 12 वाला इस महीने में सर, या कुछ महीने का और नहीं, अब तो सबकी इच्छा से हम तो चाहेंगे इसी महीने में, और ये भी चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी हो, तो उस लोगों का आ जाएगा तब तो देख लेंगे, तभी बताएंगे। वहीं भागलपुर में पुल गिरने की घटना पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि जब इससे पहले भी पुल गिरने की घटना हुई थी तब भी हम आशंका में थे, हमें सभी सेगमेंट की जांच करानी चाहिए। रिव्यू मीटिंग भी की गई। आईआईटी रुड़की ने 30 अप्रैल 2022 में पुल गिरने का कारण आंधी तूफान बताया था। हमें इसके डिजाइन में पहले से ही फॉल्ट नजर आ रहा था, इसे पूरे तरीके से ध्वस्त करके फिर से कार्य शुरू करने का हमारा निर्णय था। घटना है, हम लोग तो उम्मीद लगाए हुए थे कि इस साल नवंबर या दिसंबर में इसका हम लोग शुभारंभ करवाएंगे, उद्घाटन होना था, लेकिन किन कारणों से ऐसी घटना घटी है तो जांच की बात है, टेक्निकल बात है, इसमें एक्सपर्ट से जांच होगी और पूर्ण जानकारी ली जाएगी और जो भी दोषी होंगे दंडित होंगे, इसमें दो राय नहीं करेगा। इस तरह से लगातार सर पुल गिरना है, पहले भी हादसा हुआ था, आपने भी निरीक्षण और जांच किया है और दोबारा ये घटना हो रहा है, तो मजदूर वहाँ पे नहीं थे तो बड़ा हादसा हो सका, तो मजदूर की भी मौत हो सकती है, इस पर क्या कहेंगे? हम इसमें कहना चाहते हैं कि इसकी पूरी जांच जब तक नहीं होती, देखिए हम लोग टेक्निकल एक्सपर्ट कुछ तो गड़बड़ी है, इसमें दो राय नहीं, उसका जांच कराया जाएगा एक्सपर्ट टीम से कि काहे ऐसा हुआ है। तो ऐसे लिस्टेड पुल को क्या बैंड लगना चाहिए, क्या कहेंगे? इस पर अभी हम क्या प्रतिक्रिया दें, इस पर प्रतिक्रिया तो हमारे जो बिहार से एक्सपर्ट आएंगे वो देंगे। फोकस करूंगा, आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा, जो घटना 30 अप्रैल को हुई थी पियर नंबर 5 और 19 सेगमेंट्स गिर गए थे, और जब हम लोगों ने आईआईटी रुड़की के साथ को वर्क ऑर्डर दिया काम कराने का, तो उसी समय हम लोगों ने यह भी निर्णय लिया था कि अगर एक पियर पर इस तरह का कंप्लेन है और दिख रहा है, तो जो स्पैन्स बन चुके हैं, 4 स्पैन रेडी थे, जिसमें आज वो 3 स्पैन गिरे हैं। इसीलिए ये जो पॉइंट था टर्म्स ऑफ रेफरेंस, हम लोगों ने आईआईटी रुड़की को, जो सिविल स्ट्रक्चर के लिए बेस्ट है देश का, उनको हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आप पियर नंबर 5 तो गिरा, साथ साथ बाकी का भी आप जांच कर लें। और वो रिपोर्ट, ये जो पहला रिपोर्ट आया, इस रिपोर्ट के आधार पर हम लोगों ने पूरे 54 सेगमेंट पियर नंबर 5 के तोड़वा दिए, और बाकी जो स्पैन थे उसकी जांच चल रही थी। ये जो डिजाइन है इस ब्रिज का, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट टेक है, एंड इट इज सपोर्टेड बाय एक्स्ट्रा डोज केबल, और ये जो मेथोडोलॉजी है कंस्ट्रक्शन का, वो आरसीसी प्रीकास्ट सेगमेंटल कंस्ट्रक्शन विथ कैंटिलीवर लॉन्चिंग मेथड है। तो इसको भी ध्यान में रखकर, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का वन ऑफ द ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो स्वयं गए थे साइट पर और उनका इंस्ट्रक्शंस था इस ब्रिज का डिजाइन और ये कराने विशेष रूप से। तो देयरफॉर जब ये घटना 30 अप्रैल को घटी थी और उन्होंने भी समीक्षा की थी उसी दिन, तो तब से हम लोग इस चीज पर बहुत फोकस किए थे
कि कुछ न कुछ डिजाइन में डिफेक्ट है। जो निर्माणाधीन जो पुल जो बन रहा था वो क्षतिग्रस्त हुई है और ये पहली बार नहीं हुई। 30 अप्रैल 2022 को आंधी आने के कारण से जो सुपर स्ट्रक्चर का जो सेगमेंट था वो गिरा था और आप सब लोगों को पता होगा उस समय हम विपक्ष के नेता रहे, ऑपोजिशन लीडर रहे और हमने इस पे सवाल उठाए थे और आप सब लोगों को अवगत कराना चाहेंगे कि इससे जुड़ा हुआ जो सवाल है ये विधानसभा में भी 2 बार आया। पहला सवाल जो आया था वो अजीत शर्मा जी का था, वो दिनांक 1 मार्च 2023 को आया था। उस समय हमने अगवानी घाट पे जो पुल बन रहा था सुल्तानगंज से गंगा नदी के ऊपर, उसको लेकर के जवाब हमने दिया था और वो जवाब आप लोगों के समक्ष है, यहाँ पर है। और दूसरा सवाल एक और आया था, वो तारीख है 13 मार्च 2023। ये डॉक्टर संजीव हैं, परबत्ता के विधायक हैं, उन्होंने पूछा और दोनों बार हमने जवाब में ये बताया था कि दुर्घटना की जांच जो है प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की एवं एनआईटी पटना के विशेषज्ञ प्रोफेसर द्वारा कराया जा रहा है ताकि जो कारणों का सही पता लग पाए। और आप सब लोग जानते हैं स्ट्रक्चरल में जो बेहतर संस्थान जिसको माना जाता है वो आईआईटी रुड़की को माना जाता है। जब पहली बार ये घटना हुई थी, जब हम नेता विरोधी दल थे, तो उस समय जो सेगमेंट जो टूटा था उसको लेकर के हम सब लोग आशंका में थे, शक में थे कि भाई इसकी पूरी तरीके से चाहे स्पैन हो, स्ट्रक्चरल हो, सारे सेगमेंट्स की जो है हम लोग जांच करा लें, उसके बाद जो हम लोग कोई कदम उठाएं। हमने नवंबर में रिव्यू मीटिंग भी की थी पथ निर्माण विभाग की, जिसमें हम सब लोगों ने निर्देश दिया था कि इसकी जांच होनी चाहिए। सारे संस्थानों को हम लोगों ने अप्रोच किया और आईआईटी रुड़की को हम लोगों ने खास तौर पे माना कि इसका जो रिपोर्ट होगा उस आधार पे हम लोग काम करेंगे। वहीं नर्मदापुरम में जमीनी विवाद को लेकर सुबह होमगार्ड ऑफिस के पास कार से घर लौट रहे युवक के ऊपर गोली चलाने की घटना सामने आई है। आरोपी बाइक से आए हुए थे, जिन्होंने घायल युवक के ऊपर 2 फायर किए। गोली फायर होने के बाद कार पेड़ से टकरा गई और क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा और घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वह जिला अस्पताल में युवक का इलाज जारी है। पुलिस के मुताबिक युवक शुभम तिवारी बनखेड़ी से ड्राइवर और अपनी मां के साथ घर लौट रहा था, तभी होमगार्ड ऑफिस के पास चलती गाड़ी पर 2 बाइक सवारों ने गोली चला दी। जैसे ही गाड़ी रुकी तो रुकी गाड़ी पर भी युवकों ने फायर कर दिया। जमीनी विवाद का ये मामला बताया जा रहा है जो काफी लंबे समय से 2 पक्षों के बीच चल रहा है। सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि शिवम तिवारी नाम का व्यक्ति है, उसको गोली लगी है। ये घटनाक्रम उस होमगार्ड ऑफिस के पास में पीडब्ल्यूडी की पुलिया है वहाँ का है। बताया गया है इसके द्वारा कि ये बनखेड़ी से अपने परिवार, माँ और एक ड्राइवर के साथ लौट रहा था, जिसमें ये जैसी एजी के तराई को पार करता हुआ अपने घर तरफ जा रहा था तो 3 व्यक्ति मोटरसाइकिल से आए और चलती गाड़ी में फायर किया। उसके बाद इसी गाड़ी हम लोग मामा जी के यहाँ से आ रहे थे। हम लोग वहाँ से 3, साढ़े 3, 4 बजे करीब निकले। वहाँ से आते आते मेरा तो नींद में झपका लग गया था और यहाँ आके मेरे लड़के को गोली मारी। किसने मारी? मेरा तो नींद में झपका लगा हुआ था। एकदम से वो चिल्लाया मम्मी, तब मेरी नींद खुली। उतने में फिर मेरे को हम लोगों ने फिर फ़ोन लगाया तो सब लोग इकट्ठे हो गए। क्या लगा, क्या बाइक से आए? बाइक से आए हुए थे। कितने? वहीं मध्य प्रदेश में चुनावी मौसम जमकर अपना रंग दिखा रहा है। सत्ता में काबिज बीजेपी सरकार वापस से सत्ता हासिल करने हर हथकंडे अपनाती हुई नजर आ रही है। भोपाल के भेल दशहरा मैदान पर आज किरार धाकड़ नागर समाज का परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया। धाकड़ समाज के कार्यक्रम में भी चुनावी रंग नजर आया। कार्यक्रम में किरार समाज की अध्यक्ष
और सीएम की पत्नी साधना सिंह, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ समेत समाज के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। लोगों ने सीएम और उनकी पत्नी को चांदी का मुकुट पहनाकर चांदी का गदा भेंट किया और धाकड़ समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष साधना सिंह चौहान ने कहा कि हम प्रधान समाज है, भगवान बलराम को मानने वाले हैं, इसलिए हमें अपने घरों में भगवान बलराम की एक तस्वीर अवश्य रखनी चाहिए। समाज के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे वरिष्ठ यहाँ है, इसलिए मैं उनका स्वागत न करता हूँ क्योंकि हम उम्र में छोटे हैं, लेकिन ये कार्यक्रम हमारा समाज का है। इसके वर्षों का स्वागत पहले मैं स्वयं कर देता हूँ, इसके बाद आप बाकी। वहीं शिवपुरी प्रशासन ने रविवार को शहर के ईदगाह परिसर के बाहर अवैध रूप से बन रही 15 दुकानों को जमींदोज कर दिया। इस निर्माण की कई शिकायतें पूर्ण में दर्ज कराई गई थी और उसके साथ ही प्रशासन ने कई बार नोटिस भी जारी किया था, लेकिन अमला न होने की वजह से आज प्रशासन ने अवैध रूप से बन रही दुकानों को जेसीबी मशीन की सहायता से जमींदोज कर दिया। कार्रवाई से पहले प्रशासन ने ईदगाह के आसपास की सभी छोटी गलियों और मुख्य सड़कों पर आवागमन को बंद कर दिया और भारी मात्रा में पुलिस बल को तैनात कर दिया। ये जो सर्वे नंबर 726 है, ये शासकीय नजुल पठार की भूमि थी, जिस पर कुछ दुकानें निर्मित की गई थी, जिनको पूर्व में नोटिस दे दिया गया था, काफ़ी समय दिया गया था। और फिर सुबह सुबह कुछ लोग आए जिनका कहना था कि साहब हम खुद ही उसको डिसमेंटल कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ उपस्थित हैं अपने अमले के साथ, और हमारा अमला उनकी मदद कर रहा है और खुद ही डिसमेंटल कर रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के दतिया में प्रदेश के गृह जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपने दतिया प्रवास के चौथे दिन जिले के कई गांवों का दौरा किया और लोगों के बीच पहुंचकर बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत पात्र महिला हितग्राहियों को स्वीकृति पत्रों का वितरण किया, जिसमें भागौर में 431, आगौर में 326 और बासनी में 405 स्वीकृत पत्रों का वितरण किया गया। दवाई फ्री में, सगाई फ्री में। अभी बेटियों की शादी करी तो यहाँ से 12वीं से कोई बेटी आई थी क्या सीओ साहब? कोई कितनी बेटियां थी? 3 बेटियां थी ना। एक सेक्रेटरी क्या बोल रहे हो? एक बेटी और दूसरी जगह 3 बेटियां थी यहाँ की, तो सबको 49,000 रुपया तीनों बेटियों को दिए लगन। अब तो खाता है और एक सास है जिसको वृद्धावस्था पेंशन मिलती है। जितनी बुजुर्ग के भी 1,000 रुपया कर देंगे तो 12,000 साल सास को आएंगे, 12,000 साल बहू को आएंगे और 10,000 किसान को आएंगे। ऐसे सबसे छोटी इकाई को भी 34,000 रुपया साल के आएंगे। इस खबर में मेरे साथ